those who have joined. I welcome everybody who is present here. I welcome our esteemed guests, Mr. Dibyendu Sharma and Mr. Yogesh Popat. Before we commence the meeting, I would request you to allow me to introduce our esteemed guests. So I would like to start with Mr. Dibyendu Sharma. He's the regional director of a reputed chain of schools. He's an MPhil in English literature. He's an MA education. He's having 30 years of experience as he has been the sought after teachers in the reputed ICSE and CBSE schools in West Bengal, Jharkhand, Bihar, and Rajasthan. He has served as a principal for more than a decade, and he has been the cluster head of DAV Center for Academic Excellence, New Delhi. He's also a CBSE empaneled resource person for academic training and counseling. Nonetheless, he has been felicitated by Honorable Minister of Education, Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank in 2020 for his innovations in zero investment education. There is a lot to tell about him, but uh, I need to continue this meeting. Also, I need to introduce Mr. Yogesh as well. So I'll go to the Yogesh with Mr. Sen's permission here. Please go ahead. Another esteemed guest is Mr. Yogesh Popat. He's the principal Delhi Public Elementary School Indore. He's the youngest principal of Indore City as declared by the Indore Savodaya School Complex in 2019. He's very dynamic leader and a very creative and resourceful person. He's the board member of several international journals. He's been a keynote speaker in various educational summits. After that, I would like to introduce the rules of this meetings. The rules are very simple, that you will keep yourself on mute. And if you have any query, then you raise your hand. There is an option to raise the hand in the reactions. Then I'll come back to you and I'll allow you to put forward your views and questions. So let's start the meeting with a wonderful presence of all the esteemed guests who has joined us. So I would like to start with Mr. Dibyendu Sharma. Sir, we already know the examinations have been cancelled. First for class 10th. अभी class 12th के लिए भी cancel हो गया है. So what do you think? What are the challenges for the colleges and universities after class 12 examinations has been cancelled? Well, am I still audible? Yes, sir. Okay. So, yes, already class 10 had been cancelled, and we were sort of struggling in various schools to come into terms with how exactly we should send our, assessments to CBSE. There were certain filters associated that, the results that we formulate, that we send ahead, should be within that average of the last 3 years' results, and so on and so forth. And the schools were still struggling. The students' emotions were being taken care of, and there were a lot of questions coming to us as regards how fair it was to put that filter over there, that the results should be within that parameter of the last 3 years results of that school, the average. So we hadn't yet come to terms with that. When CBSE, after a lot of dilly-dally, after a lot of extension of dates, after a lot of meetings, finally it was none other than the Prime Minister who had to announce that we are cancelling the 12th board examinations. So how the higher educational institutions are to now admit students is a later consideration. The prime consideration, of course, would be what the students feel about it. And there are two kinds of reports coming to us. A big group of students are hailing the Prime Minister's announcement, and they're telling that it was a wonderful decision by him in this COVID time when we were already, kind of in a depression. So it was a very right step. Whereas at the same time, I also read certain students who perhaps had expected to do very well in the examination, and when they came to know that the examinations won't be there,
they definitely went into a kind of so the depression that was earlier with the other group now has come to that group of students. So that is one thing, and I think we need to address this thing in a very upcoming manner that suits both the groups. But then yes, when we talk about the different institutions, well, there was a time when most of the institutions had their own means of admitting the students, their own testing criteria, their own admission tests. So it was much later that the JEE become one standard examination format, or the NEET became one standard examination format for the whole country. Earlier, we used to have state-based competitions. We used to have college-based competitions. So I believe the colleges may still go back to that, because even we don't know what the JEE or NEET is going to be like. The national what is it called, the admission test, the the body which does that hasn't yet come up with any proper decision that, well, this is going to be the way, and they're also extending the dates, so we don't yet know what they're going to do. But yes, this situation is not absolutely unprecedented. If you have to go back a century or more, there had been cases as such. There had been pandemics, there had been epidemics, and schools and colleges and universities had, and at that time, remember, when we didn't have the internet, they had come up with methods, and those people had not failed us. Those who had gone through those examinations, those tests, had not failed us. So I'm sure there would be ways. I can just cite a few, since online examination platforms are there nowadays. So we can have, of course, the test. Even JEE and NEET, they are all computer-based examination. So children don't have to write. So all we need perhaps to do is to go to the child's place and allow him to access and answer from there. Although maybe there would be a concern in people's mind, the cheating factor and all that. So I believe that has to be relaxed a bit, and we can perhaps go into questions of the HOTS category, higher order thinking skills, to ensure that people are not, they can't just cheat. So those may be the ways, but we first have to see how the JEE and the NEET happens. So unless they happen, we really don't know what's going to be. Very well said, sir. I would go to Mr. Yogesh, sir. Sir, what is your take in this? That what are the challenges colleges, universities will be having for admitting these students, those who have not appeared for the examinations, board examination of class 12? Thank you, Himanshu ji. I seek the permission from you to be a bilingual, because this it has to be shared with the long audience. So I would like the to be a audience bilingual. Is all yours. Yes. Mr. Sharma has said very correctly that until and unless the National Testing Agency come up with the plan to execute, to conduct the JEE and NEET examination, we can't say anything. But what I feel is JEE and NEET is a kind of entrance examination, and definitely the students will get filtered whenever it will get executed. ये जब भी होगा, इसमें students filter होके ही आगे जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि समस्या उनके साथ है, उन यूनिवर्सिटीज के साथ है जिसमें परसेंटेज बेसिस पे जो एडमिशंस होते हैं, जिसमें डायरेक्ट एडमिशंस बहुत सारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज इंडिया की हैं, है ना, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर की बात करें, सो मेनी कोर्सेज आर देयर, स्पेशली दैट बिलोंग्स टू कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, इन व्हिच डायरेक्ट एडमिशन टेक्स प्लेस ऑन द परसेंटेज बेसिस. And due to this cancellation of examination, that is the major thing to justify the percentage of the students that they are going to get. And CBSE definitely they are working on the objective criteria to be developed, as they have mentioned in their CBSE circular. जैसा कि CBSE के जो ऑफिशियल्स हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो उद्देश्य पॉइंट्स जो होते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे क्राइटेरिया के साथ पे आएंगे.
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, स्पेशली उन यूनिवर्सिटीज को जो कि परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। उन्हें अब 10th और 11th के एग्जाम्स को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि looking only to the percentage of grade 12, they must have the weighted criteria, weighted calculation of the marks to their previous classes also. So this is my opinion. And I also do agree with both of you people. I would मैं शर्मा जी के साथ पूरे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि एक there was a big chunk who was in favor of examination, but जो मेजॉरिटी बच्चे जो एग्जामिनेशन नहीं चाहते थे वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव थे, बिकॉज आई हैड डन द पोल ऑन माय चैनल, इसमें 62% स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन चाहते थे. They wanted कि examination हो because they have prepared so well and they have put their time and money everything there, because coachings भी लिया है students ने, and they wanted to, जो जिनको toppers की list में शुमार होना था अपने शहर की या national level की या state level की, तो they wanted examinations. तो ये भी एक big chunk था, but unfortunately इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो social media पे ज्यादा active नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनकी बात थोड़ी सी रह गई. हालांकि कंडीशन सिचुएशंस ऐसी है ही नहीं कि अभी एग्जामिनेशन कराया जा सकता था जब तक सबको प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन नहीं हो जाए. चलिए, मूविंग नेक्स्ट, आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस दैट द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इज द ओनली पॉसिबल वे राइट नाउ. क्लास 10th के लिए ऑलरेडी गाइडलाइन आ गया है, एंड बिफोर वी आई कॉन्टेक्टेड यू फॉर दिस इवेंट, सो वी वर थिंकिंग कि अभी तक जब तक हम लोग एग्जामिनेशन आज इस इवेंट को करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्लास 12 के लिए भी आ जाएगा. स्टिल द CBSE is working on it. So I want to know whether this objective criteria either for class 10th or 12th, it will be justiciable for those students who have really worked hard, who are very much skilled, and they have prepared it well for the examinations, and they were sure that they are going to get good marks or better marks as compared to the previous performance. So योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं पहले, फिर मैं शर्मा जी की तरफ रुख करूंगा. अब इसमें देखिए कि जब जहां तक जस्टिफिकेशन की बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जस्टिफिकेशन, इट इज अगेन अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन whether it will be justified or not, because every school has their own set standard, different kind of question papers they have developed for pre-board and everything. जो भी objective criteria जो मुझे लगता है कि CBSE लॉन्च करेगी, जैसा कि क्लास 10th के लिए उन्होंने किया, तो हर स्कूल के अपने अपने एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ग्रुप ऑफ टीचर्स के अपने अपने कंस्ट्रेंट जो है वो रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइड रहेगा. आई डोंट थिंक सो, बट एज आई टोल्ड यू दैट वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल. थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि उसके अलावा अभी दूसरा कोई ऑप्शन जो है वो नहीं दिख रहा है. एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आगे अब जो एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक भी जो नेक्स्ट ये जो करंट 10th और 12th जो इस साल जो प्रमोट हुए हैं, उनके लिए भी ये एक सोचने वाली बात है, और हमारे लिए और जो एजुकेशन बॉडीज है उनके लिए भी सोचने वाली बात है कि इनके लिए, क्योंकि इनको देख के जो अभी ओल्ड जो बैच थी जिनका अभी एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, और जो करंट अभी प्रमोट हुए हैं, इनका भी इनको देख के मोटिवेशन एक लेवल ऊपर नीचे हो सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी जो चीजें चल रही हैं वो तो CBSE तय करेगी, लेकिन अगले साल के लिए जो क्राइटेरियाज और जो चीजें हैं उसको अगर थोड़ा सा विजनरी अप्रोच के साथ थोड़ा अगर पहले उस पर बात हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हमारा जो करंट बैच है उस पे वो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेगा. और रही बात क्राइटेरिया की, तो इस पे जैसा कि मैंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये जस्टिफाइड होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन जो है वो सही है फिलहाल. सर दिवेंदु सर, आपका क्या कहना है सर? जी जी. Are we talking about the class 10th that has happened, या अगले साल की क्लास 10 की बात कर रहे हैं? जो अभी क्लास 10th है सर और 12th है, इनके एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं,
कैंसिल हो गई। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्लास 10th का आता है, क्लास 12th का आने वाला है। क्या ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो भी रहेगा ऑलमोस्ट लगभग लगभग बराबर रह सकता है, क्योंकि क्लास 12th में स्ट्रीम्स का थोड़ा सा एक अलग स्ट्रीम होती है, तो कुछ चेंजेस होंगे, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहने की संभावना है। तो ये क्राइटेरिया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेहनत की थी, जो टॉपर्स बन सकते थे, क्योंकि सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें ऐसे कई छुपे रुस्तम निकल के आते हैं बच्चे जो अंडर डॉग्स होते हैं, और वो फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं, जो स्कूल लेवल पे नहीं आते हैं। तो उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ के जस्टिफिकेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, दो दैट इज द ओनली बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टुडे। देखिए बहुत सारी बातें एक टेस्ट को निर्धारित करने में आती हैं। सो टेस्ट इज गाइडेड बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स और सर्टेन पैरामीटर्स लाइक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। तो एक टेस्ट का एक मेजर होता है। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की, और अगर हम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात करें, तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा यानी जो टेस्ट की रिलायबिलिटी होती है कि वो कितना यूनिफॉर्म है, जिन जिन को टेस्ट करना चाहते हैं सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है कि, और जो वैलिडिटी है वो है कि टेस्ट क्या वाकई उस चीज की परीक्षण कर पा रहा है जिस चीज की परीक्षण से करनी। सो आई मीन whether it is really testing what it is supposed to test। इन दोनों चीजों पर अगर हम कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर मार्क्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें, उसमें उसमें दो दिक्कत है। पहली चीज ये है कि मैं एक छात्र के नाते हो सकता है कि एक बात को अपने तरह से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको समझता हूँ और मुझे लगता है ये इसका बेहतर तरीका है, लेकिन वहां मेरे पास 4 ऑप्शंस है, मुझे उन 4 ऑप्शंस में से चुनना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वहां मैं जो अपनी चीज है वो बता नहीं पा रहा हूँ, दिस समथिंग। दूसरी चीज है कि वहां हम शायद वी आर टेस्टिंग द स्पीड ऑफ द चाइल्ड मोर देन द एक्यूरेसी। हम एक्यूरेसी से ज्यादा कभी कभी बच्चे की स्पीड को टेस्ट करते हैं जब हम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं। तो एक तो ये, फिर और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं चूंकि लिटरेचर का हूँ, मैं लिटरेचर की अगर बात करूँ तो किसी की लिटर, और हम 10th और 12th की बात कर रहे हैं जहाँ पर भाषाएं हैं, जहाँ पर साहित्य है। we're not only talking about mathematics or physical sciences, we're talking about literature। तो लिटरेचर में अगर आप मल्टीपल चॉइस ले आते हैं, ऑब्जेक्टिव ले आते हैं, सो यू आर किलिंग द स्पिरिट ऑफ लिटरेचर। वहां लिटरेचर खत्म हो जाती है। आप मल्टीपल चॉइस से उसको नहीं जान सकते। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। मैं डेफिनेटली फील करता हूं कि गवर्नमेंट को आज नहीं, लॉकडाउन्स की शुरुआत हुई थी, अगर सरकार ने लॉकडाउन लगाने की सोची थी इन द मंथ ऑफ मार्च 2020, 20th मार्च, अप्रोक्सीमेटली 20th मार्च 2020 से लॉकडाउन हम सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद खुलते बंद होते अलग अलग तरह से ये चलता ही रहा। तो चलिए, ज्यादातर स्कूल्स ने बाय मिड अप्रैल उन्होंने अपने अपने क्लासेस शुरू कर दी थी और they had started the online mechanism। The government should have thought, the government should have set aside or set into action एक खास कमेटी उनको बनानी थी कि चूंकि ये पोजीशन है तो एजुकेशन को कैसे ले जाया जाए, असेसमेंट्स को कैसे ले जाया जाए, इवैल्यूएशंस को कैसे ले जाया जाए। इसके लिए सरकार को एक कमेटी बना करके उनको एक काम सौंपना था। साथ साथ सरकार को ये समझना था कि अगर आज सिर्फ ऑनलाइन जाना ही हमारा एकमात्र तरीका है, तो क्या हमारे पास इंटरनेट इक्विटी है? क्या गांव में, अब जब लॉकडाउन हो गया, हो सकता है कि कोई बच्चा गांव में गया होता, क्या गांव में भी उसे उतनी ही इंटरनेट मिल रही है? क्या किसी घर में जिनके पास 4 डिवाइस जहां चल रहे हैं, क्या बैंडविड्थ उतनी मिल रही है? Isn't there a bandwidth problem? तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? बहुत सारे फेक वो आते हैं कि सरकार ने फ्री में इतने वो देने की, इतने जीबी देने की बात कही है। दिस आर फेक। बट क्या सरकार ने कुछ सोचा कि हम ऐसा कुछ करते हैं? उसके बाद perhaps we could have gone to am I still audible? Yes, yes, sir, you are audible. So क्या हम एक इस एक पोजीशन में है जहां चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, जो टेस्ट्स हैं और जो ऑनलाइन टेस्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स हैं, उनको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देने की पोजीशन में है। आई रियली डोंट नो। और शायद चारा नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा।
as exactly Yogesh sir said and I fully agree with him कि हमारे पास कुछ है नहीं करने को, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बार-बार इस चीज को फील करता हूँ हमारे जैसे देश को, जो हम आम तौर पर बात-बात में कह देते हैं कि हम विश्व गुरु थे, तो हम कहीं यहाँ भी हमने बहुत समय विद टाइम हमने वैक्सीन प्रोड्यूस कर दिए, DRDO ने दवाई भी बना दी, तो जरा एग्जामिनेशंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में भी मेरे ख्याल से एक डेडिकेटेड कमेटी को सोचना था, और वो मुझे कहीं दिखा नहीं। हम सब अपने आप मतलब जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट स्कूल्स की तो बात ही छोड़िए, द प्राइवेट स्कूल्स आर डूइंग एज दे कैन। मुझे ये सही लग रहा है मैं ऐसे चलता हूँ, उसे वो सही लग रहा है वैसे चल रहा है, बट इज देयर अ स्टैंडर्डाइजेशन? इज वहां से ऊपर से कोई गाइडलाइन है हमारे पास, कोई सुविधा हमें दी गई? कुछ भी नहीं। तो बच्चा तो हताश होगा, परेशान होगा। एकदम से आप जो अब तक बच्चा पढ़ते आया है, एक सर्टेन तरीके से पढ़ते आया है, चीज उसकी जीन में घुस गई है, अब एकदम से कहते हैं हर चीज आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू हैम्पर द रियल रिजल्ट। आप उससे नहीं अंदाजा लगा सकते कि बच्चा वाकई उस सब्जेक्ट में अच्छा है कि नहीं। दिस इज व्हाट आई थिंक। बहुत कुछ करना था इस चीज को चालू करने से पहले, बहुत कुछ करना था, जो अनफॉर्चुनेटली व्हाट एवर द रीजंस मे बी हम शायद नहीं कर पाए। एंड रियली ऑनलाइन objective examinations are more a test of speed than accuracy and knowledge. That is what I think. Thank you, sir. The audiences have joined us. Audiences से मेरे एक request है, if you have any query, आप दिवेंदु सर से या योगेश सर से कोई query है आपकी, if you want to ask a query, you can raise your hand there. Reactions में आपको hand raise करने का option मिलेगा meeting में. So I'll allow you to speak. ओके सर, एक बात योगेश जी और आपने दोनों ने कही कि गवर्नमेंट को अप्रोच रखना था, क्योंकि उसकी वजह से एक इशू अभी बहुत मतलब ऑब्वियस है, हो भी रहा है, और कहीं यू आर द रीजनल डायरेक्टर, ऑफ एनी स्कूल्स ऑफ रेप्यूटेड चेन ऑफ द स्कूल्स। तो वहां पर आपके सामने भी कंसर्न्स आते होंगे कि स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन कैंसिलेशन होने के बाद से उतना सीरियसली स्टडीज को नहीं ले रहे हैं, खासकर 10th और 12th के स्टूडेंट्स। ये इसमें क्या किया जाना चाहिए? योगेश जी ने ऑलरेडी बताया कि एक अप्रोच रख के अभी से पहले क्राइटेरिया बता दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्जामिनेशन का मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है फ्रॉम सॉर्ड इंडिया और ऑल दीज एस्टीम्ड एजुकेशनिस्ट एंड द स्टूडेंट्स, बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो, कि एक विजनरी अप्रोच रखी जाए, कमिटी डिसाइड करके नेक्स्ट ईयर का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ब्लूप्रिंट कम से कम आप लोग तैयार कर लीजिए, जिससे एजुकेशन का कुछ बेटरमेंट रहे, बेटर एजुकेशन रहे इन द कमिंग मंथ्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू मिस्टर Shen sir. What are the long term and short term impact of this objective criteria on the schools and at the graduation level? हमने अभी एडमिशन देना है क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, तो इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या रह सकते हैं? और अभी क्लास 11th में जो 10th के स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया है, उसके क्या स्कूलिंग पर या एजुकेशन पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहने वाला है? सर, a part of the question was already answered by हिमांशु जी। आपने इसका जवाब स्वयं दे दिया कि एक बच्चों में जो सीरियसनेस की कमी वो आ रही है, ये तो एक इम्पैक्ट है ही। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, सिर्फ स्कूल के बच्चों में ही नहीं, मैंने ये चीज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बच्चों में भी देखा है। मेरा बेटा स्वयं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आई हैव फाउंड इन हिम एंड हिज फ्रेंड्स whom I have interacted with कि जब से ये पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, जब से परीक्षाएं ऑनलाइन हो गई, तब से उनमें एक जैसे एक शिथिलता आ गई है, एक सीरियसनेस की, एक डेडिकेशन की कुछ कमी सी आ गई। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। मैं चलिए स्कूल के बच्चे तो फिर भी दे आर एट अ वेरी यंग स्टेज ऊपर, एंड नाउ दीज चिल्ड्रन आर इन द प्रोफेशनल एरियाज। अब ये या तो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर्स बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। तो अगर ये हाफ हार्टेडली पढ़ के चीजों को
चीजों का आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आगे आएंगे। तो मैं कई बार अपने बेटे से मजाक में कहता हूँ कि भाई तुम्हारी सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, क्या जब जरूरत पड़ेगी बिजनेस भी ऑनलाइन बनाओगे? So how are you going to grapple with the real life situation? तो इसका वाकई मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। I'm so sorry, I really don't have an answer to it. कि इसको कैसे करा जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ऑनलाइन के बगैर अब कोई तरीका भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ऑनलाइन ही है तो इसको इस स्तर पर ले जाना पड़ेगा जहां वो सीरियसनेस हो, जहां अगर हमें जरूरत पड़े बच्चों को बताने का तो प्रॉपर सिर्फ एक क्लास 10 लेवल का आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट करने का मजा ले सकते हैं, सिर्फ वही नहीं, यू हैव टू गो मच अहेड। आप इस पर सरकार को सोचना था। हाँ, और जो बात ये आ रही है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दिक्कतें क्या आएगी, डेफिनेटली दिक्कतें आएंगी, क्योंकि दो तरह से, एक तो बच्चों में जो सीरियसनेस की कमी है, बच्चे इस चीज को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे कि पढ़ाई भी जरूरी है, पर बच्चे लेते ही नहीं है। स्कूल के बच्चे एक बड़ा मास उसको वो अपने एंजॉय करने में लगे रहते हैं। पढ़ना किसको अच्छा लगता है, इस तरह की जनरल फीलिंग होती है। तो वो तो अब और नहीं पढ़ेंगे, अब बहुत ज्यादा उसमें एक शिथिलता है। दूसरी चीज है, सबसे बड़ी जो हम शिक्षकों के साथ या शिक्षाविदों के साथ दिक्कत है, that is the inability to do proper assessment. हम सही ढंग से उनको असेस नहीं कर पा रहे कि बच्चा जो बता रहा है, जो कर रहा है, उसका जो असेसमेंट हो रहा है, क्या वाकई ये बच्चे का ही है, या किसी ने उसकी मदद की है, या बच्चे ने कोई और हथकंडा अपनाया है जिससे वो ये रिजल्ट जो उसका दिख रहा है। देयर आर प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स आल्सो नीड टू बी असेस्ड, बिकॉज़ जब तक ऐसा होगा हम शायद रियली we cannot estimate who are the ones who really know the thing, जो डीपली ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ तक कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस, वो अपने आप में एक क्लियर पिक्चर नहीं देती है एक बच्चे की एकेडमिक एक्सेलेंस की। उसी तरह से ये जो ऑनलाइन है या जो ऑब्जेक्टिव है, ये मल्टीपल चॉइस है, इससे हमें नहीं पता चल पा रहा। आपने बताया कि मैं एक चेन ऑफ स्कूल्स को हेड करता हूँ, उनके एकेडमिक अफेयर्स देखता हूँ, हमें खुद दिक्कत हो रही है। We really don't know whether the examinations that are being conducted are really being faced or really being taken with that spirit with which we are sending it ahead. कोशिश हम बहुत करते हैं, इसके साथ साथ हम पर्सनली बच्चों से रैपो रखने की कोशिश करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, वो किसी तरह के एक मानसिक तनाव में ना चले जाएं। इस बात के लिए हमने सेल्स तैयार किए हुए हैं ताकि उनसे बार बार बात की। बहुत जरूरी है इमोशनल कनेक्ट बनाए रखना बच्चों के साथ। ऑनलाइन ने हमें एक बहुत बढ़िया एक चीज दी है जो पहले हमारे पास नहीं थी। हम बच्चों के घरों में पहुंच रहे हैं, वी आर एंटरिंग देयर हाउसेस, वी कैन टॉक टू देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंडपेरेंट्स, पीपल हु आर the caregivers to the children, जो उनका देखभाल करने वाले हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं, हम उनसे वार्ता कर रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो है, लेकिन ये एक सिंपल टेस्ट के लिए या एक नेशनल लेवल के टेस्ट के लिए मुमकिन नहीं है कि आप टेस्ट ले और हर बच्चों से बात करके समझे कि बच्चे ने कितने, फिर उसमें एक सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। फिर वो अपने आप में एक समस्या बन जाएगी। आपने जो नंबर दिए हैं सिर्फ बच्चे के रिजल्ट के आधार पर, परीक्षा के आधार पर नंबर दिए हैं, या आपने बच्चों से बात करके जो समझा उसके बेसिस पर दिए हैं। ये बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसीलिए जो मैं कह रहा था, फिर से मैं कह रहा हूँ, एक स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता है। एक स्टैंडर्डाइजेशन होने पर जो सरकार की ओर से आए, हम चाहे प्राइवेट स्कूल्स वाले हो या जो सरकारी स्कूल में भी है या जो हायर एजुकेशन में भी है, वो समझे कि दीज आर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड वी कैन नॉट बाईपास देम एंड वी हैव टू कीप टू देम, और हमें इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो शायद एक कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, चलो आज शिक्षा मंत्री ने कह दिया, कल प्रधानमंत्री ने वो कह दिया, ये सारी बातें चीज कोर्ट में चली गई। ये बातें नहीं होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक अ प्रॉपर डिसीजन एंड रोल इट आउट एज अ। अच्छा, दूसरी बात यह कि देखिए, ये एक कुदरतन ऐसा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें वैसे ही पहले से ही बता दिया गया कि हम अभी बोर्ड एग्जाम्स को थोड़ा हल्का कर देंगे।
the board exams will not be of that impact as used to be earlier. शायद ये जबरदस्ती इसकी एक शुरुआत है, लेकिन हमें इसको करने का मौका नहीं मिला. We weren't prepared, we weren't given any guidelines, we weren't told how to do it. चलिए हो गया, लेकिन now I think it is time when perhaps taking lessons from this unprecedentedness of the situation, हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें एक standardized format लाना ही पड़ेगा. Otherwise बच्चे भी इसको हल्के में लेंगे और हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हम कैसे बच्चे की सही गुणवत्ता को पहचान पाए. This is what I think. योगेश जी, मैं आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहा हूँ. सिंस यू हैव लॉट ऑफ पेपर रिटन इन योर नेम and you are the board member of so many technical journals as well, and you have been awarded for those also. कितनी possibilities है, because you are an MTech gold medalist as well, and तो कितनी possibilities है कि सिस्टम बनाया जा सकता है, because as जैसे हम we are non technical teachers, हमको IT का ज्यादा knowledge नहीं है, we use the system, but you understand the technicality behind कि एक सिस्टम को क्रिएट करने में इलेक्ट्रॉनिकल लेवल पे और IT लेवल पे कितना एफर्ट लगता है, कितना थॉट प्रोसेस लगता है. तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि अभी भी एक ऐसा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिससे असेसमेंट करने में आसानी आ जाए. Himanshu ji, see, you are talking about if you are talking about my personal opinion, है ना? And if I talk about myself, as an engineer, as a teacher, as a principal, what I feel about myself, कि I am so much of positive, I have a lot of positivity कि मैं सिर्फ एक मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकता, बाकी मैं सब कर सकता हूँ. पहली चीज. दूसरी चीज, शर्मा सर ने जो पॉइंट उठाया कि अलग अलग एरियाज में जो नेट की कनेक्टिविटी है, और आपका भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है, तो पॉसिबिलिटी तो है कि हम उस चीज को वहां तक लेके आ पाए. इंटेंशन कहां से लाएंगे? अभी जैसे सर ने बोला कि यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस एंड यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ असेसमेंट. यस, मैं इस पे बहुत समय से विचार कर रहा हूँ, और मैंने अपने मैनेजमेंट और टीम के साथ भी ये चीज शेयर की, और मुझे इस बात की 100% सेटिस्फैक्शन है कि वो टीम मेरे साथ और मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है. क्या ये समय नहीं आ गया है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को फोकस करने का? सीबीएसई इस पे 2012 से जो सर्कुलर्स मैंने देखे, पूरा समर वेकेशन मैंने उस पर बिताया. मुझे ऐसा लगता है कि जो whether you talk about the honesty of the students, or whether you talk about the honesty of the parents, whether you talk about the honesty of the teachers, whether you talk about the system, it's a time to think and to change the pattern of the assessment for next 20-25 years. मुझे ऐसा लगता है कि इस असेसमेंट के पैटर्न को वापस से विचार करने की जरूरत है, और इस पे विचार होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आगे स्टैक होती चली जाएगी, और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, अभी समय है कि इसको कम किया जा सकता है. वी कैन रिड्यूस इट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट इफ वी मूव अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि कौन करेगा, तो अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर कौन इन्वॉल्व होगा? And government also have that level of opportunity and the resources to develop these kind of things. चलिए, पहला साल था कोविड का, कोई तैयार नहीं था, लेकिन अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी तैयार नहीं हो पाए तो फिर ये गलती होगी. पहला साल था, गलती नहीं थी, लेकिन ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के की गई गलती हो सकती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे विचार करने की जरूरत है. हिमांशु जी, हम 2 महीने बाद हम फिर से एक सेशन करेंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी टीम इस पे काम कर रही है, और मुझे ये पूरा भरोसा है अपनी टीम पे कि हम एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करिकुलम सीबीएसई के लिए लेके आएंगे दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल से 100%, क्योंकि मैंने पूरा समर वेकेशन इस पे बिताया. योगेश जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए. बिल्कुल. और इस पे मैंने कोशिश की. We would love to join, we would love to learn from you. And दिवेंदु सर भी बहुत कीन रहते हैं, he's a keen learner also. तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, if he's having time, so we'll come together to join you there. Definitely. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है,
दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से एक क्वेरी है, एक पेरेंट है, आई थिंक फ्रॉम अ चाइल्ड, देवांशी भाटी। यस यस सर, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर क्या आवाज आ रही है मेरी? जी 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 मिस्टर भाटी, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सर। आवाज आ रही है सर मेरी कि नहीं आ रही? पहले जी सर, आ रही है आवाज। Okay, okay, thank you very much. First of all, I am very obliged that I am proud, I have proud privilege to be the part of this meeting. मैं देवांशी का फादर हूँ और मैं जो बात एज ए पेरेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया सर इन दिनों में, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। वो ये सर कि अभी जो शर्मा सर ने जो बात बताई उन्होंने, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है उसमें आप जो कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को, ये जहाँ से भी कंटेंट आ रहा है वो बच्चा अपने नॉलेज लेवल से उसको समझ पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वहीं तक लिमिटेड है। जबकि उसका जैसे अगर क्लासरूम में ऑफलाइन होता तो हो सकता था कि उसके लेवल पर अपलिफ्ट किया जा सकता था। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे इनका एग्जाम है ऑनलाइन का, तो सर ने ये बोला कि उसमें असेसमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, ऑनेस्टी है यानी ये बच्चा किसी से सपोर्ट ले रहा है, कहीं से और से पूछ के कर रहा है, तो उसका भी पता नहीं चलता है। और इन केस अगर उनका ऑफलाइन एग्जाम हो जाता है बाद में, तो ऑफलाइन में तो बिल्कुल भी फिर मालूम चलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसने क्या पढ़ा है और वो उसका रिजल्ट आप जानते हैं कैसे होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, तो एग्जाम का तो सवाल ही नहीं है। तो अब इसमें मेन ये एक बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो बिल्कुल रुक गया है। और पोपट सर ने भी यही बात है कि अब जो ये सिस्टम जो था, ये जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, इस पैटर्न से हम उनको एक तरह से मतलब क्या कहते हैं सर्विस दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में हुआ कि बच्चे अच्छे मतलब दे विल बिकम गुड सिविलियंस। तो ये इसमें ये मेरा मेन था कि इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, इसमें कुछ भी असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो रही। बच्चे फ्यूचर ऑफ इंडिया जो आप देखें कि अभी आने वाले जो जनरेशन होगी, ये 3-4 साल जो भी होगी, ये जनरेशन तो बिल्कुल डफर टाइप की होगी, मैं ये बता रहा हूँ। इसमें सर मैं एक चीज यहाँ पे कोट करना चाहूंगा विद ड्यू परमिशन ऑफ हिमांशु जी। जी 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 कि एक मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा पेपर मैंने उनका देखा था और हमने भी उसको फॉलो करने की कोशिश की कि उनके जो क्वेश्चन सर मैंने देखे, देवांशी जी के भाटी जी से मैं मुखातिब हो रहा हूँ यहाँ पे, आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद देवांशी फादर, कि उन्होंने करिकुलम को डेली लाइफ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से जोड़ा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक इफ वी टॉक अबाउट बॉयंसी, आई एम अ फिजिक्स टीचर सो आई विल टॉक अबाउट फिजिक्स, कि बॉयंसी को लेके उन्होंने इतना अच्छा पेपर बनाया था सर कि उन्होंने ये बोला कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो और आप ये देखिए कि कौन सी चीजें फ्लोट हो रही है या नहीं हो रही है और उसका रीजन लिखो। कितना आसान है, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, लिटरेचर भी था, मैथमेटिक्स भी था, केमिस्ट्री भी थी। तो मैं इसी चीज पे आने का चाह रहा था कि एक तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमको पता नहीं कब से सिखाई जा रही है। ये सही समय था उसको चेक करने का, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि जो घर पे, जैसे शर्मा जी ने बोला कि बच्चा किसकी हेल्प ले रहा है हमको पता नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन घर पे अगर बच्चा है तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चा तो उनका ही है। तो ये ऑनेस्टी वाली जो बात है कि अगर वो पेपर पता नहीं, मतलब इस पे यूनिफॉर्मिटी तो बिल्कुल नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर पेरेंट्स थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा फोकस अगर करने लग जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर्स जो भी आप जिस स्कूल से भी आप जुड़े हुए हैं और जहां का असेसमेंट आपका हो रहा होगा, उस पे कम से कम आप अपने बच्चे को ऑनेस्टली उन पेपर्स पे अपीयर करा पाएंगे। थोड़ी सी सर ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा स्कूल के भी तरफ से चीजों को बदलने की जरूरत है। जैसे हमने अपने स्कूल में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 70-80% वी आर सेटिस्फाइड विद आवर असेसमेंट, आवर प्रैक्टिकल अप्रोच एंड व्हाटएवर वी डिड। तो मैं उसी पे, क्योंकि मैंने पूरा समर वेकेशन बहुत सारे लोगों से बात की और फिर मैं इस कॉन्सेप्ट पे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे आ पाया था कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो पेरेंट्स, टीचर्स,
और बाकी क्या जो आसपास के सराउंडिंग जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, अगर सारे लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे तो देश का भविष्य है, तो उनको सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबकी है। जी मैं बिल्कुल योगेश जी की बात से एग्री करता हूँ कि अभी कुछ जगह पे सभी पेरेंट्स तो नहीं होते हैं, ऐसे देवांशी के फादर बहुत अवेयर है इस बारे में, तो वो निकल उनकी बातों से भी ऐसा लग रहा है। जी many parents those who involve in the studies of the students, तो वो टीचर्स को एक सपोर्ट होता है फ्रॉम द होम, और ऑनलाइन एजुकेशन जब से हुई दैट सपोर्ट वाज इनएविटेबल। वो मतलब अति आवश्यक चीज हो गई थी, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि पेरेंट्स का ध्यान रहेगा। क्लासेस में हम लोग होते थे बच्चों पे नजर रखने के लिए, अभी हम नजर रखने के लिए नहीं है, वी आर द फैसिलिटेटर्स। हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं अपने घरों से बैठ के, मगर पेरेंट्स का रोल भी कम नहीं है और कभी नहीं हो सकता कम, क्योंकि पेरेंट्स आर द फर्स्ट एजुकेटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटी की तरफ से। स्वीटीज, you can unmute yourself and ask your queries. आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए स्वीटी। Actually, I don't have any query. I just want to contribute to the point. Hello. Yes, Hello, am I please. audible? Yes, you are audible. Please continue. Ma'am, it would be better if you. I don't have any question. Sweetie, ma'am. Sweetie ma'am, if you can switch on your camera, would be better for everyone, so that everyone would be able to. You are live on Facebook also, madam. Sir, actually, there is a network issue today. That's why. Okay, carry on, ma'am. Yeah. Yes. Okay. Actually, I rightly agree with the point of Yogesh sir that. Yeah, this is the difficulty that we face in online education. This is what we call the disaster management. Every teacher stuck many a times in these kind of things. जब भी वो बनेगा या जैसा भी है, तो अगर हमें कोई भी चीज उन्हें सिखानी है तो वो ग्राउंड लेवल पे घर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अगर हम उन्हें कोई चीज बता भी रहे हैं तो वो सुनने के लिए वहां बैठे होने चाहिए ना। अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और बच्चा वहां प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम हमारा वैल्यू जो भी उस बच्चे को इनकलकेट करवाना चाहते हैं वो वहां बच्चा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं करना होता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द रिसोर्सेज। Am I? Yes, you are very correct, ma'am. We do agree with you. Thank you for your valuable input. Anything else, ma'am? That's what we want कि हमें एक काउंसलिंग या एक तरीके का कुछ करिकुलम हमें पेरेंट्स के लिए बनाना चाहिए शायद, जो हम उनको काउंसिल कर पाए एक बार कि वो कैसे हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आई थिंक मुश्किल क्या इम्पॉसिबल ही होगा। जी चलिए मूवी। हिमांशु जी। जी सर। स्वीटी जी की बात से जो मुझे एक मतलब अनायास एक तस्वीर उभर आई मेरे मस्तिष्क पटल पर, वो है कि कभी अखबार में मैंने देखा था कि बिहार के किसी जिले में, बिहार के किसी जगह पे एक 3 मंजिला स्कूल बिल्डिंग है जहाँ शायद बोर्ड की परीक्षा चल रही है, और उनके जो अभिभावक हैं या उनके जो शुभाकांक्षी हैं वो स्पाइडरमैन की तरह उन खिड़कियों में चढ़ के उन बच्चों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्स के दौरान। तो अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो ठीक है, तो बैठे हुए इस डिस्कशन में या एक सर्टन उसको वो उस एक्सटेंट तक कैसे ले जाए, हमें करना तो जरूर चाहिए। एज आई थिंक इट वाज मिस्टर पोपट हु सेड, और डिड यू से कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। अब तो ये ट्रक के पीछे भी नहीं लिखा जाता। हम बचपन में देखते थे कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता था ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, अब तो वहां से भी हट गया है। तो इट्स रियली बिग चैलेंज। अब वैल्यू एजुकेशन देंगे, वैल्यू एजुकेशन को लेकर के सीबीएसई ने कई they had workshops done। उन्होंने वैल्यू एजुकेशन को प्रोपेगेट करने के लिए ट्रेनर्स बनाए थे,
resource persons बनाए थे, but it is a very big challenge. It is not only that you just teach a few teachers of a school about the values and it will spread out like wildfire. ऐसा है नहीं. It is really big challenge, but definitely value education and concept education. These two things have to come to the prime. जैसे हम अब तक हमने क्या किया है, we have put the cart before the horse. हमने लाइफ स्किल्स को बहुत नजरअंदाज किया है. हमने रोट लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रधानता दी है. हमने जो विषय वस्तु है उसका सिर्फ जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको रट लेने को ही हमने विद्या कहा है. तो things have gone wrong. हमें अब उसको सही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग इन वैल्यूज, देन वी हैव टू ब्रिंग इन स्किल्स, और फिर वैल्यू और स्किल्स के घोड़े को आगे रखेंगे तो ही हमारे सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन तो बहुत है, हर जगह इंफॉर्मेशन है. हम इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करें, इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें, दिस इज अ बिग चैलेंज. तो लेकिन अब मेरे छोटे से मस्तिष्क के अंदर इस बात का वाकई वो नहीं है कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन से लड़ने के लिए इतने छोटे से समय में क्या हम वैल्यूज और स्किल्स को आगे ला सकते हैं. ये सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था. हमें मैकॉले को पकड़ के रखने की कोई जरूरत नहीं थी. एवर सिंस मैकॉले द ब्रिटिश हैड लेफ्ट, हमें बहुत पहले, हमारे पास अच्छे दिमागों की कमी नहीं थी. वी रियली हैड ब्रिलियंट पीपल. आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट वी ट्राई एंड अंग्रेजों का ध्येय अलग था. उनका था कि हमें क्लर्क बनाए, हमें सोचने वाले इंसान, हमें लीडर बनाने वाले ना बनाया जाए. वो जो कह दे हम सिर्फ उतना समझ के उतना हम एग्जीक्यूट करें, हमें ऐसा बनाया जाए. लेकिन वो तो आजादी के साथ साथ खत्म हो गई. हमें आज मतलब 70-72 साल बाद हम इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि वैल्यूज क्यों नहीं हमारे पास स्किल्स क्यों नहीं है. आई थिंक अगेन आई विल गो बैक. मैं किसी एक पर्टिकुलर सत्ता या सरकार को दोषारोपित नहीं करता हूँ. हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं. वी ऑल एजुकेशनिस्ट, वी शुड हैव मेड दैट मूव, दैट पुश. पता नहीं योगेश जी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ हो रहा है. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड. मैं बहुत खुश होऊंगा कि वो इस चीज को आगे ले आए और हम सबकी तरफ से जितनी भी थोड़ी बहुत अगर कंट्रीब्यूशन हो सके वो रेडी टू डू. बट नाउ अब तो पानी नाक के ऊपर आ गया है. वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. लेकिन ये भी सोचना शायद गलत है कि हम एकदम से ही वैल्यू एजुकेशन लाएं और पूरे देश का जो है परिदृश्य वो बदल जाए. ये थोड़ा सा नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है. लेकिन शुरुआत जब तक नहीं होगी, हो सकता है आज से 10 साल 12 साल, मैंने अपनी टीम को भी ये बोला कि 5 साल बाद शायद मतलब आई एम नॉट श्योर, शायद 10% बच्चों में, अब हमारे स्कूल के बच्चों में शायद सिर्फ 10% का मैं टारगेट रख रहा हूँ कि शायद 10% बच्चों की अगर मानसिकता अगर अपन आने वाले 5 सालों में भी बदल पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एजुकेशनिस्ट होने का जो इस जीवन में जो भी टारगेट था वो तो पूरा हो गया. बाकी हाँ, टीम सारे जब तक टीचर्स मिलके काम नहीं करेंगे, एजुकेशन बॉडी मिलके काम नहीं करेगी, तब तक मतलब अकेले क्या करेगा, कोई भी नहीं कर सकता. सारे लोगों के कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट की जरूरत है. और बिल्कुल मैं शर्मा जी से भी कांटेक्ट करूंगा इस सेशन के बाद. मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा विद योर परमिशन दैट बहुत यस चैलेंजेस रहेंगे बिकॉज वी आर कंडीशनड. आई एम फ्रॉम बायोलॉजी, तो मैं तो कंडीशनिंग की बात करूंगा, रिफ्लेक्सेस की बात करूंगा. तो वी हैव बीन कंडीशनड. हम लोग जिस एनवायरनमेंट में पढ़ते आ रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सो वी हैव बीन कंडीशनड टू बिकम अ क्लर्क. जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो सीधी बात होती कि जॉब नहीं लगेगी. किसी ने वहां बिजनेसमैन बनने की बात नहीं करी. बिजनेसमैन को छोटा लिया जाता था कि माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, तो कहते कि दुकान खोलेगा या पापा के गल्ले पे बैठेगा तू. तो समथिंग लाइक दिस यूज्ड टू बी टॉट बाय द टीचर. जबकि आज हम जानते हैं कि इफ आई वुड हैव बीन अ बिजनेसमैन, आई वुड हैव बीन फार बेटर इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन आल्सो. ओके, बट पॉइंट इज कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का जो महत्व है वो ये है कि किस तरह की वैल्यूज हमें डालनी है. वी नीड टू इम्प्रोवाइज द थिंकिंग स्किल. हमें पहले रियलाइज कराना है कि जो हमारा इंडियन करिकुलम से भी बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें लीडरशिप स्किल्स बनाई जा सकती है.
हमें हमारी जैसे कंडीशनिंग हुई है, वी नीड टू ब्रेक दैट आइस। और कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस चैलेंज थोड़ा सा आ गया सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि बच्चा जो है वो रोल मॉडल पे चलता है। इफ we used to be impressed by our teachers, we used to think our teachers are we used to take our teachers as a role model, टीचर को रोल मॉडल मानते थे। आज बच्चों की रोल मॉडलिंग शिफ्ट हो जाती है, छोटी क्लासेस के बाद से शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो मिमिक करने वाले कैरेक्टर्स हैं, they are available, and in a very short span of time they become famous, they starting earning money, and they starting earning decent money, good money, ओके और शो ऑफ बिजनेस तो चल ही रहा है। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट बच्चों के जो कोमल ब्रेन पे जा रहा है, जो दिमाग पे उनके प्रभाव पड़ रहा है, उनके मस्तिष्क पर, उसका इतना गहरा प्रभाव हो गया कि वैल्यू एजुकेशन की ही वैल्यू नहीं रह रही है। तो अगर आज आप वैल्यू एजुकेशन बच्चों को देने चले, वो परंपरागत जो तरीके थे, जिस तरीके से हम लोगों को वैल्यू एजुकेशन दी जाती थी कि झूठ बोलना पाप है एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इन सिर्फ अब कोर्स से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू शोकेस दैट, और उसका इम्पैक्ट भी हमें सोसाइटी में दिखाना पड़ेगा कि एक वैल्यू जो पर्सन में होती है उनको हमें पिक्चराइज करना पड़ेगा, उनको हमें बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि इस पर्सन में ये वैल्यू है। अगर हम एलन मस्क की बात करेंगे तो हमें उसकी सिर्फ लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं बताना, एज ए पर्सन एलन मस्क कैसे हैं, उनमें क्या क्या वैल्यूज हैं, उनकी बात हमें करनी पड़ेगी, तभी तुम एलन मस्क बन पाओगे। अदरवाइज सिर्फ शो बिजनेस में रह के आप एलन मस्क नहीं बन पाओगे। तो समथिंग लाइक दिस वी नीड टू डन, एंड वी आई डू सपोर्ट दिव्येंदु सर कोट की हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन योगेश जी आपको लगेगा, वी आर रेडी। एंड यहाँ पर मैं योगेश जी की एक बात को फिर से कोट करना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक स्कूल का काम नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स का काम नहीं है, इट्स द वर्क ऑफ एंटायर एजुकेशनल फ्रेटर्निटी फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन टू द हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो लोग बैठे हुए हैं उन सभी का काम है कि वी कम टुगेदर एंड वी डेवलप, बिकॉज खाली गवर्नमेंट एक ढांचा बना के दे सकती है, एग्जीक्यूट हम लोगों को करना है। एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट बॉडीज टू इंक्लूड such peoples like Mr. योगेश, Mr. दिव्येंदु शर्मा। तो ऐसे जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, दो दे आर नॉट वर्किंग इन अ गवर्नमेंट बॉडी, बट एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जहां पर इंडिविजुअल्स आके अपनी बात को रख सके एंड देन दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन, जैसा उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अभी क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए लिया है। मूविंग नेक्स्ट, दैट ये इस पे बात ऑलरेडी हो चुकी है, बट देयर आर सर्टेन चंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग डीमोरलाइज्ड बिकॉज उनके एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए एंड दे वर इन द फेवर ऑफ एग्जामिनेशन। what is your saying, Mr. Yogesh, to these students? Yes, I will keep it short because क्योंकि बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन हमारा हो रहा है सारे पॉइंट्स को लेके। डीमोरलाइज होने की जरूरत इसलिए नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनका 12th का रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, क्योंकि स्कूल अगर बनाता है तो अच्छे बच्चों का अच्छा ही बनेगा पहली चीज। और अगर वो अपनी मेहनत कंटिन्यू रखे, ठीक है, बाहर जो भी चीजें चल रही हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें, अपना मोटिवेशन बना के रखें, तो आगे भी जो सक्सेस है वो उनको मिलनी ही है। मतलब जिसने मेहनत की है इस समय पे, उसको आज नहीं, लॉन्ग टर्म में आगे जाके, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रोफेशनल इंटरव्यूज हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उनको हमेशा ये फायदा तो मिलेगा ही। तो जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत खराब तो नहीं होने वाली। और टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो वहां पे बैठे हैं वो होने भी नहीं देंगे, कोई भी स्कूल नहीं होने देगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा डीमोरलाइज होने की जरूरत है। ठीक है, इम्पल्सिव रिएक्शंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए थे, जैसा आपने बताया कि आपने पोल कराया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहते थे एग्जाम में, लेकिन बट दे हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन नाउ, एंड नाउ इट इज टाइम टू kickstart yourself to get motivated for the other hurdles that you're going to have in next 10-15 years. So there's no need to demoralize, I suppose. Okay. Now we have a question from the audience. Miss Vidhi, you can unmute yourself and ask your question. Good evening, everyone. Actually, मेरा कोई question नहीं है. आपने जैसे पूछा कि Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. मुझे सिर्फ एक एडवाइस या एक आइडिया आपको
जैसे हम स्टूडेंट में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट की मेंटालिटी होती है कि हमें अगर कोई भी प्रेशराइज करता है तब जाके स्टूडेंट वो काम करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब हम स्टूडेंट्स को सिर्फ बोल रहे हैं पर वो इम्प्लीमेंट खुद में नहीं करता। जैसे हम सिलेबस की बात करें तो उसे पता है कि हमें ये चीज पढ़नी है, ये चीज पढ़नी है, तो मैं उतनी टाइम के लिए ये पढ़ूंगा, तो देन आफ्टर आई जस्ट क्रैक माई एग्जाम्स एंड ऑल दैट, मेरा रिजल्ट अच्छा बनेगा, मेरे परसेंटेज अच्छे होंगे। वैल्यू बेस्ड अगर हम स्टूडेंट्स में लाना चाह रहे हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बच्चों में दिखाएं कि उसमें वैल्यूज आई है या नहीं। हम कुछ ऐसा करें कि बच्चे ऑलरेडी हाईलाइटेड हो कि यस दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, हमारी मैक्सिमम जब एक्सटर्नल्स आते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें होती है कि आई डोंट नो वो एक्सटर्नल हमारे सिलेबस से रिलेटेड बात करेगा या कुछ अदर बात करेगा। अगर मैं वैल्यू बेस्ड की बात करूं, जो भी कैरिकुलम गवर्नमेंट बनाती है हमारे सब्जेक्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, तो एक ऐसा शेड्यूल या ऐसा एक एग्जामिनेशन पैटर्न होना चाहिए वैल्यू बेस्ड का कि स्टूडेंट को पता हो कि मेरा जो क्वेश्चन या मेरी जो एग्जाम्स होने वाली है वो सिर्फ सिलेबस बेस्ड नहीं होगी, मुझे अपने एग्जाम को या अपने जो स्टडी मटेरियल है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। तो स्टूडेंट का माइंड ऑलरेडी उस लेवल पर उस एरिया में कनेक्ट होगा कि मैंने जो पढ़ा, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन स्टूडेंट लर्न कर रहा है, अब वो उस क्वेश्चन को रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करेगा, ये अगर स्टूडेंट खुद समझने लगे तो गवर्नमेंट का और हमारा काम इजी हो जाएगा उसके अंदर वो स्किल को डेवलप करने के लिए। जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि हम बोल रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एफर्ट जरूरी है, टीचर्स, पेरेंट्स, गवर्नमेंट, एवरीथिंग, लेकिन अगर ये एक फाउंडेशन होगी स्टूडेंट्स के ऊपर कि सब्जेक्ट को तो आप पढ़ रहे हो लेकिन इसे वैल्यू बेस्ड भी आपको कनेक्ट करना है, तो स्टूडेंट अगर बाउंड होगा तो मे बी इट इज पॉसिबल कि वो उस चीज को अचीव कर पाए। दैट इज माय Yes, thank you, Ms. Vidhi, for your valuable input. Now, moving forward, I have some last 2 questions left. Yes, my question is to Mr. Dibyendu Sharma. Sir, am I audible? Yes, you're audible. Just the light went away, so I have now taken resource of my mobile phone. Okay. It is raining heavily, and there is No issues, sir. anyway. No. I'm you are still audible to me. Yes. I hope I am audible Yes, too. yes, sir. Definitely. Fine. My question is to you, sir. If the online education continues for 1 more year, means this present session, if we couldn't come back to the normal education pattern, so what preparations should be done at the school level and the governmental level? You're investing me with a lot of responsibility by asking this question. As a school director, what is your take? What हाँ, एक बात तो तय है कि एटलीस्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर ईयर। मुझे तो कोई इसमें दो राय नहीं मुझे लगती है कि स्कूल्स 2023 तक तो नहीं ही खुल पाएंगी। द रीजन बीइंग कि अभी मैंने कहीं से डेटा देखा, ओनली अबाउट 3% to 4% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज बीन इनोक्यूलेटेड, वैक्सीनेटेड। तो ये हमें ये हिम्मत कहाँ से आएगी कि हम स्कूल्स खोल दें और वो गैदरिंग्स अलाउ करें। हाँ, ये हो सकता है कि हम एक हाइब्रिड मोड की बात सोच सकते हैं कि स्टूडेंट्स को हम छोटे ग्रुप्स में बुलाएं, डिस्टेंटली बिठाएं और कुछ करें। हालांकि वो भी एक बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं फर्ज करें हम, और हम एक दिन में 10 को बुलाते हैं, 10 को वही बात पढ़ाएं और फिर 10 को बुलाएं फिर वही बात पढ़ाएं, ये इट इज नॉट रियली समथिंग दैट इज वेरी फीजिबल। लेकिन फिर भी हम एक हाइब्रिड मोड की बात कर सकते हैं शायद, जब थोड़ी सी जो ये पैंडेमिक की ग्राफ हो वो थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाए, तो शायद हम इस दिशा में हम हाइब्रिड मोड की बात कर सकते हैं। अदरवाइज आई रियली डोंट सी, क्योंकि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आया ही नहीं है।
तो और ये भी कहा जा रहा है, हालांकि आई एम नो एक्सपर्ट इन वायरोलॉजी, मुझे इस बात का नहीं मालूम है, लेकिन कहा जा रहा है, हम तो मीडिया से ही सुन रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव है जिससे हम आशंकित हैं, आतंकित हैं, वो बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाला हो सकता है। तो इस हालत में हम ऑनलाइन मोड से निकल जाए बहुत जल्द, ये शायद मुमकिन नहीं है। और अभी तो हमने सीखना ही शुरू किया है। शायद एक सिल्वर लाइनिंग ये है इस पूरी चीज का, एक अच्छी बात ये है कि हम धीरे धीरे अब पटु होते जा रहे हैं इस मोड को अपनाने में, इसके इस्तेमाल करने में हम ज्यादा से ज्यादा हम अब पारंगत होते जा रहे हैं। तो जो बात कही गई, पूछी गई, वो ये कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर हम ऑनलाइन मोड की बात करें तो उसके लिए जो सबसे पहली कंसिडरेशन होगी वो है एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कि स्कूल्स के हाथों में नहीं है। हम आज जब बात करते हैं, और देखिए इसके आड़ में लोग कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। हम जब किसी बच्चे को एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं हमारे गांव में जी नेटवर्क है नहीं, तो बच्चा करे क्या। तो फिर उसको दूसरे ढंग से क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है, वो घर में बैठ के लिखता है, फिर उसको भेजता है, और उससे वाकई फिर वही रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी क्वेश्चन जी मार्क में सर। जाती है। जी तो सबसे पहली चीज है कि हम इंटरनेट इक्विटी को एक्सेस करने की कोशिश करें। इसमें सरकार को एक बड़ी भूमिका लेनी पड़ेगी। जैसे सरकार ने अभी ऑक्सीजन प्लांट्स और वैक्सीन के लिए और दवाइयों के लिए मुहिम छेड़ी है, इसी तरह से इसको भी एक अलार्मिंग सिचुएशन में एक इमरजेंसी स्टेप मानते हुए इधर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि जहां भी, क्योंकि एजुकेशन, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी एजुकेशन की, किसी ने प्राइमरी शब्द का उल्लेख किया था। प्राइमरी, प्री प्राइमरी के बच्चों की तो और हालत खराब है। एक छोटे से मोबाइल फोन के सामने बैठ करके हम स्कूल वाले और उनके पेरेंट्स वो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जो बच्चा सीख जाएगा, एक 4 साल का बच्चा, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट को कहा है कि आप क्यों नहीं सबको एक कम से कम एक बड़ा टैब मुहैया कराएं जिस टैब में वो देख सके। तो उसमें भी काफी काफी सारी दिक्कत आती है। वो कह रहे हैं कि फिर हम हमेशा उस टैब के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ही ठीक करने में लग जाएंगे। लोग बार बार उसके बारे में पूछेंगे, पीपल विल मिस यूज द टैब एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं चाहूंगा, मैंने कोशिश भी की थी कि अगर हम ऐसा कुछ कर सके, किसी टीवी चैनल से जुड़ करके, कि एजुकेशन टीवी पर एक नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट किया जाए, बच्चों को समय का मालूम हो, जिस समय बैठना है, ताकि टीवी एक बहुत बड़ा और बहुत आम है और उसका स्क्रीन बड़ा है, एक मोबाइल के स्क्रीन के अंदर नहीं झांकना पड़ता है, वो इजीली अवेलेबल है, उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। टीवी पे अगर है भी हमारे पास, दूरदर्शन के पास ये है उपलब्ध सिस्टम जो टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराई जा सकती है, उसको अगर अपडेट करें और टीवी को बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर बाकी उसका जो रीइंफोर्समेंट होगा, उसका रीइंफोर्समेंट जो स्कूल्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से, उसका असेसमेंट जो है वो इंटरनेट के माध्यम से वो करें। लेकिन द गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड विथ 2 big steps. First, trying to provide good internet across the country. Number 2, to come up with some proper education system, एक standard education system, कम से कम the basic concepts, the basic knowledge over the television. टेलीविजन का इस्तेमाल इस समय बहुत जरूरी है। हम टेलीविजन में सिर्फ न्यूज देख करके घबराते हैं, उसका अब एक पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। I really look forward to the government thinking on these terms. और schools को, मेरे ख्याल से टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ट्रेन करना चाहिए, how they can use the best of the platforms that are available to them, how they can make their teaching more interesting. कैसे अभी जैसे कहा गया कि वो टीचर्स कुछ पढ़ाते हैं और बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। The lady who was there on the screen, मैं चूंकि थोड़ा बाहर हो गया था कनेक्टिविटी से, मैं सुन एग्जैक्टली नहीं पाया था। तो ये बात नहीं हो, टीचर्स शुड आल्सो बी ट्रेन्ड। उसके लिए स्कूल्स को कुछ करना पड़ेगा। दे विल हैव टू एम्प्लॉय people who know this technology well,
and they'll have to teach the teachers. They'll have to train the teachers how to use this online mechanism. उसका मुकम्मल इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसमें खुद को एक तरफ रखते हुए कैसे दूसरी तरफ वो डायग्राम्स वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं. मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा कि एक टीचर ने क्या किया है, अपने कैमरे को, चाहे वो मोबाइल फोन है या लैपटॉप, मुझे नहीं पता क्या था, उसको शायद क्लासरूम में एक फ्रंट डेस्क पर रख दिया है और खुद जाकर के बोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं और बोल रहे हैं. ना तो उनकी आवाज आ रही है और उनको ये भी नहीं पता लग रहा है कि कब मैं लिखते लिखते उस कैमरे के रेंज के बाहर जा रहा हूँ और मेरे जो बातें बोर्ड पर लिखी हुई है वो बच्चों को दिख नहीं रही है. तो ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक एवरी टीचर शुड बी गिवन. फिर मैं अपने उसी अब तो तकिया कलम से लगने लगेगा, मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूंगा. एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए. दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस मोड, और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है. सो अ गुड यूज ऑफ द टेलीविजन, a proper internet connectivity across the country, and proper training of the teacher. अब टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है बीएड से कहीं ज्यादा. हाउ टू यूज द ऑनलाइन मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग. These three I believe are very very important. और कहीं ना कहीं सर बीएड का जो करिकुलम है that is now outdated. This corona has literally made it outdated. हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ही आउटडेटेड है. एक्चुअली the whole education system is outdated. We haven't progressed much from what the British had left us with. जी सर. सो योगेश जी, थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, because since you are a very young and dynamic leader, तो हम and you have just become the principal. So during those 2-3 years of principalship, now the corona has struck and the private institutions are also facing the challenges financially. So is this the time that government should think about the private institutions, because a major chunk of the children is also studying in the private schools in India? Do they need to support or bail out the schools which are financially struggling? और इसी क्वेश्चन में मेरा ये टीचर्स की जो प्लाइट है, ये स्कूल ऑनर की ही प्लाइट नहीं है, बिकॉज दे many school owners are literally, they have gone bankrupt and they are not able to pay, they are willing to pay to their staff. So what do you think कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए आज? और मैं ये सेम सवाल दिवेंदु सर से भी पूछूंगा आपके बाद. आप हमेशा मॉडिफाई करके पूछ रहे हैं मेरे से, और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि इस पे बहुत सारे केसेस और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट, बहुत सारी चीजें आ गई है. खैर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट को ये बिल्कुल विचार करने की जरूरत है. सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो नए ग्रोइंग स्कूल्स है, जैसे हमारा भी जो स्कूल है वो ग्रोइंग स्कूल है, 6 साल पुराना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है. ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं. आपने बोला कि बहुत सारे स्कूल्स बैंकरप्ट भी हो गए और बंद भी हो गए, वो कि वाकई में बहुत दुखद है. तो इस पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनकी ईएमआई जो भी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो लोन पे चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर कुछ हो पाता है तो उस पे भी मुझे ऐसा लगता है कि विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की जो संस्था है, अगर इस चीज में रिलैक्सेशन मिलता है तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा जो है वो टीचर्स को और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा. मेरा सवाल पूछने का मोटिव ये था क्योंकि जब मैंने आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ स्कूल, तो आई हैड टू स्टडी द गाइडलाइंस, देन आई केम टू नो दैट ओपनिंग अ स्कूल इज अ नॉन प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज. यस इट इज. अगर हम एक नॉन प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज हैं, तो गवर्नमेंट हम लोगों को उस तरीके से कंसीडर क्यों नहीं कर रही है? इट हैज बीन मोर देन 1.5 years. And there are large chunks of people who are working here to earn their bread and butter. Sir, the same question is to you. What is the role of the government here? The role of the government is
ये भी एक मुश्किल है, पता है हिमांशु जी, कि हम हर चीज में सरकार की तरफ ही देखते हैं। शायद हमें सरकार ने ही it didn't allow us to be self sufficient, self reliant। जो आपने बात कही है ना, उससे इसको मैं जोड़ना पसंद करूंगा। आपने कहा कि बिजनेस कहीं भी हमारे एजुकेशन में नहीं है। मैं जिस चेन ऑफ स्कूल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ या जिस चेन ऑफ स्कूल्स में हूँ, thankfully वहाँ एक सब्जेक्ट, वहाँ एक there's a particular thing which is called FLIP, that is financial literacy. Financial literacy is something that we incorporate into our curriculum, which I think should have gone big way into all the curriculum. हमें पता नहीं कहीं एक समझा दिया गया है कि जो पढ़ते हैं या एजुकेशनल फील्ड के साथ ताल्लुक रखते हैं, दे आर लिटिल सुपीरियर टू जो बिजनेस करते हैं उनसे, सुपीरियर इन परहैप्स सोशल स्टेटस या ऐसा कुछ। हालांकि ये बात जरूर है कि जो बिजनेस में है और जो दोज हु आर डूइंग वेल, आज कोई कमी नहीं है। आपने एक नाम लिया था, वैसे आज सैकड़ों हैं, हजारों, हमारे देश में भी कई हैं जो बिजनेस के दम पर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। So there are several people like that, but somehow when we try and teach, योगेश जी ने वैल्यू एजुकेशन की बात की। हम बचपन से मॉरल साइंस पढ़ते आए। there was a subject always all through moral science। तो मॉरल साइंस इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद भी कोई ज्यादा मॉरल की आमदनी तो हुई नहीं बच्चों के अंदर। मैंने कुछ बहुत ज्यादा चेंज देख नहीं पाया। एक मॉरल साइंस था, और उस मॉरल साइंस में जब लोगों के बारे में बताया जाता था तो बहुत कम, बिजनेस में जो अच्छा करते हैं ऐसे लोगों के बारे में बहुत कम बताया जाता था। तो कहीं जैसे एक इंडिकेशन दिया जाता था कि पैसे कमाना बिजनेस करके परहैप्स इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ये शायद एक कोई ग्लोरीफाइड एरिया नहीं है। तो उससे क्या हुआ, हम भूल गए उस चीज को और सिर्फ पढ़ने और लिखने में मशगूल रह गए, और उस चीज को हमने छोड़ दिया उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली बट ट्रू, उनके लिए जिन्होंने शायद पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं की थी। आप ये देखेंगे कि आज जो लोग एक्सेल कर रहे हैं फाइनेंशियल लाइन में, जो बिजनेसेस में एक्सेल कर रहे हैं, उनकी शायद खुद की, आप चाहे धीरू भाई अंबानी की बात कर लें, ऐसे और लोगों की बात कर लें, देयर ओन एजुकेशनल बैकग्राउंड वाज नथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। तो ये बड़ी एक द्वंद्व है लक्ष्मी और सरस्वती जी के बीच, कि क्या हम अगर सरस्वती के पीछे जाए तो लक्ष्मी लाभ नहीं होगा। ये तो कहीं दोनों में एक सामंजस्य लाना पड़ेगा। तो शायद हम सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर रहना हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यस, द गवर्नमेंट व्हेन इट इज, देखिए एक बात तो ये है, गवर्नमेंट इज अलाउइंग प्राइवेट स्कूल्स टू कम अप। व्हेन द गवर्नमेंट इज अलाउइंग प्राइवेट स्कूल्स टू कम अप, इट इज अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर एक प्राइवेट स्कूल खोलता हूं और मैं उससे नहीं कमा पाता हूं, इफ आई कांट अर्न फ्रॉम इट, हाउ विल आई सस्टेन दैट स्कूल? कैसे उसको मैं चला सकता हूं? It is not possible for everybody to do a philanthropic work. So even the government knows how much who is earning और कैसे क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पॉलिसी में भी सब एक अकोमोडेशन चाहिए, सबको प्रॉपर अकोमोडेट करना चाहिए। एक बात आई, एक गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादातर स्टेट्स में, बिकॉज सिंस एजुकेशन इज ऑल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट, ज्यादातर स्टेट्स के गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप पेरेंट्स फी ना भी देते हो तो आप उन पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स पे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं फी लेने के लिए। आप बच्चों को एग्जामिनेशन से बाहर नहीं रख सकते, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा बच्चों का, उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू ऑल दैट। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप फी ना लें, लेकिन आप जबरदस्ती ना करें। So in this situation, when there are small school owners who have just, देखिए कई लोगों ने एक दुकान खोलने की तरह स्कूल खोला हुआ है। I know several people. I've lived and worked in several parts of India, so I know of people who are running school as their main source of sustenance. तो जब ये बात आई कि आप नहीं ले सकते हैं, तो ज्यादातर उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोचा ठीक है हम नहीं दे तो भी चलेगा। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनको अपने स्कूल्स बंद करने पड़े। Schools had to be closed. So did the government come in to help them?
if the government has permitted those schools to run, the government also should have taken care कि उसका हम क्या बैकअप दे, क्या समझाएं, कैसे हैंड होल्डिंग करें. But there was a big lack of proper hand holding by the government. मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला that this pandemic is going to stay and this pandemic is going to be disruptive, उस समय सरकार को एजुकेशन सेक्टर पर बहुत ध्यान देना चाहिए था, which I find big time missing. सरकार की मदद, सरकार की नजर तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ. देखिए, अब सिंपल सी बात है, एक एग्जामिनेशन जिसको कराने का काम एक सरकारी एजेंसी को है, या जो एग्जामिनेशन एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को जो कराना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सरकार का काम है. तो ऐन वक्त तक क्या आप कुछ सोचेंगे नहीं कि जब होगा तब देखा जाएगा, पीछे कर देते हैं, एकदम से कैंसिल कर देंगे. ठीक है, जो जिनको ये एग्जामिनेशन कैंसिल होना पसंद नहीं है, जब माहौल ठीक होगा आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं. क्या मतलब है इसका? माहौल अगर 2 साल तक ठीक नहीं है तो 2 साल तक मैं इंतजार करूंगा कि मैं तब जाकर के मेरे 12th का एग्जाम दूं. आई थिंक देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर, वही मैं फिर कह रहा हूँ कि कमेटी होनी चाहिए थी. देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर एन ऑथराइज्ड कमेटी जो इस पर काम करती, जो स्कूल्स की हैंड, प्राइवेट स्कूल्स से आपके ही बच्चे निकल रहे हैं, वो किसी विदेश के बच्चे नहीं, दे आर फ्रॉम आवर कंट्री. तो वो किस तरह की मुसीबत का सामना कर रहे हैं. आई थिंक वी डेफिनेटली शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट. द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट. हिमांशु जी. जी, थैंक यू सो मच सर. So, दर्शकों, we have come to the end of our session. If you have any query, you can just ask. You can unmute yourself and you can ask. Okay. So I would like to extend my thanks to Mr. Dibendushan Sharma and Mr. Yogesh Popat for giving us their time, and we had a great discussion over here. I hope ये जो वीडियो सभी ने देखा हो वो लोग उसको शेयर करें एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन तक ये हमारी बात पहुंचे कि एज ए एजुकेशनिस्ट हम लोग क्या चाह रहे हैं. ठीक है, हम लोग टॉप लेवल के एजुकेशनिस्ट नहीं है, मगर जो एक मिडिल लेयर और लो लेयर का तबका है वो भी एजुकेशन कर रहा है और वहां पर कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हुआ. हमारी एजुकेशन इसी ढर्रे पर चलती रहेगी और इससे ना तो देश का विकास होगा तो सबके विकास की तो बात बहुत दूर रहेगी. तो चलिए, आप सभी से विदा लेता हूं और एक बार सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot.